Hello, my dear children. Welcome to today's session. And today we are starting with our chapter number 9, and that is geometry. Geometry में क्या होता है? जहाँ पे हम खूब सारे अपने scales को और different geometrical instruments को use करके figures draw करते हैं. जैसे scale हो गया, compass हो गया. Then we have a protractor. We will see in this chapter कि protractor क्या होता है और उससे हम angles कैसे draw करते हैं. So angles वगैरह सब कैसे बनते हैं? Line से बनते हैं. लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, ये सब चीजें हम सीखेंगे आज इस चैप्टर में. So now how do we know that the given figure is a ray? It has one end point and from another side it is extending to the infinite distance. So A is our ray, C is our ray and that's it. हमारा K और L क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो एंड पॉइंट्स हैं और जो L से है देन इट इज अ रे, जो N से जा रही है वो रे है बट MN इज नॉट द रे. ठीक है, सो L एंड N से जो जा रही है दीज आर द रेज. नाउ हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर? लाइन सेगमेंट क्या होती है? जिसके इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स. तो जैसे AB, BD, CD एंड AC. यहाँ पर SR, RQ, QP and PS and SQ. Similarly, यहाँ पर LM, MN, NO and OL. Here EF, FG, GH and HI. ठीक है? Now what is geometry? Geometry is a science of understanding shapes and figures. To understand various shapes and figures, there are some basic principles which are discussed here. Now, which is a point? A point in geometry is a location. कि यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट खत्म हो रही है, इस पॉइंट से लाइन जा रही है, ये पॉइंट हमारा सेंटर है सर्कल का. सो पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री. It has no size, that is no width, no length, no depth. A point is just shown by a dot. ठीक है, जैसे इस पॉइंट का नाम है P. What is a line? A line is defined as a line of points that extends infinitely in both the directions. इसको हम कैसे denote करते हैं? ऐसे. ठीक है, और अगर हमें दिखाना है कि लाइन A and B लिख के हम ऊपर से बना देंगे symbol of a line. Now, points that are on the same line are called collinear points. तो ऐसे points जो इस line पर lie करते हैं वो collinear points होते हैं. A line generally means a straight line. This is read as line AB and written as like this. Arrow on both sides implies that it can both infinitely on both the sides. And what is a line segment? That's a part of a line which has two end points. तो अगर हमने इस line पर दो पॉइंट्स A और B बना दिए तो A और B जो है वो लाइन सेगमेंट हो गए. कैसे बनाते हैं हम A B को? सो इसके जो एंड पॉइंट्स है इट इज डिनोटिंग द लाइन सेगमेंट. इफ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट इन वन डायरेक्शन इनफाइनाइटली देन इट बिकम्स अ रे. अब रे का क्या मतलब होता है? जैसे A B है, कैसे बनाएंगे? ऐसे, which is denoting ray, one end point and extending infinitely towards other direction. Now you have to name the lines, line segment and rays in this figure. So here BA is the ray. क्योंकि ये यहाँ से जा रही है ना तो BA हो गई और यहाँ से E is the ray. Alright? Now line segment कौन सी है? AB, BC, CD, AE, BE, all these are the line segments, right? Now what are the lines? AE is the line. AE is the line. Now what is the relationship between points and lines? एक point में से infinite lines जो हैं वो pass कर सकती हैं. ठीक है? So how many lines can be drawn through the point Z? Infinite. So we can draw infinite number of lines passing through this point. Lines that contain the same points are known as concurrent lines. तो ऐसी lines जो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में से पास कर रही हैं वो सारी लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं.
एंड वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं, उसमें से सिर्फ एक लाइन जा सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं जा सकती। नाउ व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन जैसे हम लोग शेप्स में पढ़ते आ रहे हैं, एनी फ्लैट सर्फेस इज कॉल्ड द प्लेन। ठीक है, जैसे ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया। सो सर्फेस ऑफ अ टेबल, सर्फेस ऑफ अ बुक आर फ्लैट, एंड इफ अ फ्लैट सर्फेस इज एक्सटेंडेड infinitely in all the direction, we get a plane. Any flat surface is a part of the plane. ठीक है, जैसे line segment is a part of the line, और अगर कोई भी एक प्लेन सरफेस बिल्कुल इनफाइनाइटली स्प्रेड है, उसको हम प्लेन बोलते हैं, और उसके एक पार्ट को हम बोलते हैं फ्लैट सरफेस। इसीलिए जो शेप्स होती हैं, दोज आर द फ्लैट सर्फेसेस। दिस इज अ प्लेन P and the arrow shows that they can be extended in all the directions. The plane is a collection of an infinite number of points. A plane contains an unlimited number of lines, line segment and rays. अब ये plane है, हर जगह extend हो सकता है, इसके ऊपर तो हम कुछ भी बना सकते हैं, points, lines, rays, line segment, different shapes, सब बना सकते हैं. Now let's do this exercise based on what we have learned till now. So a point is a fundamental unit of geometry. A ray has one endpoint and extends and no definite length. Geometry is a science of understanding shapes and figures. The dash is a collection of an infinite number of points. Plane. Dash is a part of line usually represented by taking 2 endpoints on it. Line segment. Lines that contain the same point are known as concurrent lines. Now you have to draw the following. बस आप ऊपर देखेंगे कि वो लाइन है कि रे है कि लाइन सेगमेंट है, एंड यू विल ड्रॉ इट अकॉर्डिंगली। अगर आपको ये वाली रे बनानी है तो आप यहाँ बनाएंगे ए, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी ए और बी, मतलब 2 एंड पॉइंट्स इस पे ए भी बना लेंगे और रे बनाएंगे। ठीक है, अब आपको एम एन बनाना है लाइन सेगमेंट, सो दिस विल बी एम, दिस विल बी एन एंड सो ऑन। पॉइंट बनाना है ओ, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट बनाएंगे और इसको ओ लिख देंगे। ठीक है, प्लेन बनाना है जेड, एक प्लेन हम बनाएंगे, सेंटर में लिखेंगे जेड और चारों तरफ इसके बना देंगे एरोज। नाउ यू हैव टू नेम the figure shown here. This is the point A, this is the line segment AB, this is a ray PQ. सबके symbols ऊपर आएंगे, जैसे कि AB ऐसे और PQ ऐसे। ठीक है, this is a plane X, this is a ray NM, then this is a line RS. Now you have to count the number of line segments, write their names. Is the number equal to the number of months in a year? Months in a year होते हैं 12, और देखिए कि क्या यहाँ पर 12 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 so on. ठीक है, नाउ एंगल क्या होता है? जब भी हमारी 2 रेज मीट होती हैं एक पॉइंट पर, उसके बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एन एंगल। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक ये रे है, मेरी एक ये रे है, एंड they have a common point O, and here we have P, we have Q, so we have 2 rays over here, OP and OQ, which have a common point O. इनके बीच का जो एरिया है, इस पार्ट को, मतलब वो किस एंगल पर मीट हो रही हैं, किस मेजरमेंट पे मीट हो रही हैं, वी कॉल इट एन एंगल। सो एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय 2 रेज मीटिंग एट अ कॉमन एंड पॉइंट, एंड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। सो ये एंगल का सिंबल होता है, एंड हेयर द गिवन एंगल इज AOB। ठीक है, सो हमेशा सेंटर बीच में ही रहता है। सो दिस एंगल इज नोन एज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? दिस इज एंगल POQ। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द एंगल? लेट्स अंडरस्टैंड। ये होते हैं इसके आर्म्स। ठीक है, सो व्हाट आर द आर्म्स ऑफ दिस एंगल? दैट इज OP and OQ आर द आर्म्स। जहां पर ये मीट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, that is called a vertex. So what is the vertex of angle POQ? The vertex is O. ठीक है, so this is an arm, this is an arm, this is a vertex,
एंड दिस इज कॉल्ड एन एंगल। इस एंगल का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है कि कौन से इंक्लिनेशन पे मीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एन एंगल। वी कैन फाइंड एंगल्स इन वेरियस थिंग्स अराउंड अस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूम भी देखोगे, रूम में भी क्या है, जहां पर दो एजेस मीट हो रहे हैं आपके, वहां पर एक एंगल बन रहा है। जस्ट इमेजिन कि ये जो दो एजेस हैं रूम के, वो हमारी दो रेज हैं, या फिर दो लाइन सेगमेंट्स हैं, और ये जहां पर मीट हो रहा है दैट इज द वर्टेक्स, एंड वो है एक एंगल है। ठीक है, जैसे कि सिजर हुई, सिजर के बीच में ये वाला जो एरिया है दैट इज एन एंगल, है ना। अब यहाँ पर जो इस चेयर में, दिस इज एन एंगल, दिस इज एन एंगल, यहाँ पर दिस इज एन एंगल। ठीक है, नाउ द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स इज वर्टिसेस। हियर mark any one angle that you can see in each of these traditional dance forms। तो इसके अंदर हम क्या एंगल देख पा रहे हैं? जो मैं इसमें एंगल देख पा रही हूं दैट इज दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, राइट? So Kathak, Lavani, Dandiya Ras and Bharatnatyam. Now let's learn the names of the angle, कि ये कौन सा एंगल है, वो कौन सा एंगल है। तो डिफरेंट तरीके से हमारी रेज मीट हो सकती हैं। हमारी रे ऐसे भी मीट हो सकती है, हमारी रे बिल्कुल सीधे जैसे रूम्स में मीट हो रही है ऐसे भी मीट हो सकती है, हमारी रे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मीट हो सकती हैं, ऐसे और ऐसे। सो हर बारी ये एक अलग एंगल फॉर्म कर रहा है। हमारी जो रे है वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट होकर मीट हो रही हो, तो ये वाला एंगल बनेगा, है ना। सो हर बारी हमारी जो रे है वो एक डिफरेंट एंगल पे मीट हो रही है, इसलिए इन वाले एंगल्स के अलग अलग नाम होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब भी हमारी जो रेज हैं वो एकदम परपेंडिकुलरली, मतलब बिल्कुल ऐसे करके मीट हो जाती हैं जैसे रूम में मीट होती हैं, दैट इज कॉल्ड अ राइट एंगल। राइट एंगल। अब इस राइट एंगल के अंदर जहां पर भी हमारी रे मीट होगी दूसरी रे से, वो सारे क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, और इस राइट एंगल के अगर बाहर, क्योंकि राइट एंगल तो यहाँ पे बन रहा है, इस राइट एंगल के बाहर जितनी भी हमारे अगर रेज मीट होंगी वो हमारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल्स होंगे। और अगर ये दोनों ऐसे स्ट्रेट आकर मीट हो जाती हैं, सो दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, दिस इज अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, चलिए नाउ वी कैन नेम दीज एंगल्स। अब इन एंगल्स का नाम कैसे कैसे है, दिस इज द एंगल ए बी सी एंड दिस इज एन एक्यूट एंगल, देन ऑल्सो दिस इज द एंगल पी क्यू आर, अगेन एन एक्यूट एंगल। ठीक है, सो जो एंगल सी बी ए या एंगल ए बी सी है वो इसका नाम है। एंड विच टाइप ऑफ एंगल इज दिस, दैट इज द एक्यूट एंगल। चलिए अब आगे हम देखते हैं एक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल्स के एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न हाउ टू राइट द नेम ऑफ दीज एंगल्स। तो जो भी हमें इसका पॉइंट्स दे रखे हैं वो ही उसका नाम होता है। ऑलवेज कीप द वर्टेक्स इन द मिडल, इन द सेंटर। नाउ वी कैन ऑल्सो नेम द एंगल एज एंगल बी और एंगल वाई। तो मतलब हम इसको या तो पूरे नाम से लिखें विद द रे, या फिर जहां पर वो आके मीट हो रहे हैं सिर्फ उस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं एंगल बी या एंगल वाई। ठीक है, नाउ एंगल्स कैन ऑल्सो बी नेम्ड बाय असाइनिंग न्यूमरल्स टू इट। तो इसको हमने नंबर की न्यूमरल की जगह, सॉरी अल्फाबेट की जगह नंबर दे दिया है। सो दिस इज एंगल 1। You have to find example in your classroom of each of the 4 kinds of angles you have learned about. तो 4 angles अभी हमने जो पढ़े हैं, आप उसके example अपने classroom में ढूंढिएगा। Now what is the interior and the exterior of an angle? चलिए मैं आपको फिगर से समझाती हूँ। Now आपके पास एक एंगल है सपोजिंगली PQR। अब इस PQR एंगल में अगर कोई भी पॉइंट PQR के अंदर है,
O, S, T, U, ये सारे ही पॉइंट्स क्या हैं, इसके इंटीरियर में है, ठीक है। और अगर कोई भी पॉइंट इसके इस वाले एरिया में लाई करता है जो कि एंगल से बाहर है, जैसे कि A, B, C, ये सारे पॉइंट्स उसके एक्सटीरियर में लाई करते हैं. So an angle has two parts, interior and exterior. The points like inside the angle form the interior of the angle, and the points lying outside of the angle form the exterior of the angle. In the given figure, R, S, T are in the interior of the angle, and Q, P is in the exterior of the angle ABC. Now this is a सूर्य नमस्कार poses given, and हर एक पोज में कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता है ना। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज बन रहा है, देन यहाँ पर एक्यूट एंगल है, यहाँ पर भी एक्यूट एंगल है हमारा, ठीक है। तो हर एक पोज में एक एंगल बन रहा है। Now you have to look at the following figures and fill in the blanks. तो ये हमारे फिगर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स हैं कि फर्स्ट में एंगल कौन सा है, आर्म कौन सा है, वर्टेक्स कौन सा है। तो आपको चारों में ही आर्म, एंगल और वर्टेक्स लिखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है। जो इसके आर्म्स हैं, आप पहले लिखेंगे आर्म्स, वो हैं हमारे A, B, C, B, ठीक है। एंगल कौन सा है हमारा, ईदर यू कैन राइट एंगल B और यू कैन राइट एंगल ABC। और वर्टेक्स कौन सा है हमारा इसके अंदर, वो है B। दैट्स इट। बस इसी तरीके से आपको ये सारा करना है। You have to name the given angle in the different ways. So this can be named as angle Q, angle 1, angle PQR, or angle RQP, angle 2, angle Y, angle XYZ, angle ZYX. C वाला आप अपने आप करेंगे। Now, how do we measure the angle? हमारे सामने एक ऐसा फिगर दिया है, मुझे क्या पता इस एंगल का क्या मेजरमेंट है। सो देयर इज दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। अब इसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं और इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं अपने एंगल्स को। सो you might have seen an instrument in the shape of half circle in your geometry instrument box. तो आपका जो geometry box है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर एक सेमी सर्कल टाइप का आपको स्केल मिलेगा। So we call it protractor. So we use it to measure angles and also to construct them. मतलब draw करने के और measure करने के काम आता है ये इंस्ट्रूमेंट। A picture of a protractor is also given here. And a protractor has two scales, an outer scale and an inner scale. ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है हमारे प्रोट्रैक्टर में कि हमारे पास सबसे पहले एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है जो कि बेसिकली 180 डिग्री को दिखा रही है, ठीक है। और इसके बिल्कुल सेंटर में दिस इज 90 डिग्रीज। तो जौन सा भी एंगल इस तरीके से दो स्ट्रेट रेस से बन रहा है या लाइन सेगमेंट से बन रहा है, ये क्या होता है, ये राइट एंगल होता है और वो यहां लाई करता है, ठीक है। अब अगर आप अपने प्रोट्रैक्टर को सीधा रखेंगे तो यहां पर आपके पास जो डिग्रीज होंगी सारी, यहां पर जो मेजरमेंट्स होंगे वो होंगे आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 90 तक। तो आपकी यहाँ 0 से लेके 90 तक काउंटिंग लिखी होती है, ठीक है। 0 से लेके 90 तक। कई बारी सिर्फ 10 के काउंटिंग लिखी होती है और नहीं तो बहुत छोटे छोटे जो हमारे मेजरमेंट्स भी दे रखे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ठीक है। तो अगर हमारा एक रे इस पे आ रहा है और एक रे सपोज यहां आ रही है, तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया, 20 डिग्रीज। उसी तरीके से अगर एक लाइन यहां पर है और दूसरी यहां आ रही है तो क्या मेजर हो गया हमारा इस एंगल का, 40 डिग्रीज, ठीक है। अब इस तरफ जो हमारे मेजरमेंट्स होती हैं, मैं पहले यहां लिख देती हूँ 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20,
10 एंड दिस इज 0, ठीक है। अब यहाँ पे 90 से बढ़ती हैं 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 and this is 180. So this comes out to be straight line. अब कोई भी जो एंगल है जिसका एक रे यहाँ पर है और दूसरा रे यहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। सपोज ये वाला एंगल है हमारा 130 डिग्रीज का, ठीक है। दिस एंगल इज ऑफ 130 डिग्रीज। आई एम नॉट रबिंग दिस प्रोटेक्टर। हमें कभी भी अभी जौन सा भी एंगल बनाना होगा हम इसी पे बनाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या है, ये हमारा होता है आउटर सर्कल और एक होता है हमारा इनर सर्कल। नाउ ईच स्केल बिगिंस विद 0 डिग्री एंड एंड्स एट 180 डिग्री, सो 0 से 180। देयर आर 180 इक्वल स्मॉल डिविजन्स एंड ईच डिविजन डिनोट्स 1 डिग्री। The line segment joining 0 and 180 is called the baseline. तो basically ये जो है हमारी baseline है and the midpoint of the baseline is called as center of the protractor. An angle ABC is given and you are asked to measure it with the protractor. ठीक है, चलो. So when I was writing the measurement earlier, I started 90. After 90, I just wrote 110. तो 10 का फर्क होता है. So this will be 100, then 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 and then 180. ठीक है, चलिए. ये तो हमारा जो है वो इनर सर्कल है, ठीक है. एक आउटर में क्या होता है, इसका उल्टा लिखा होता है. इधर की तरफ 10, 20, 30, 40 और इधर की तरफ 100 और 120, 130, 100, 110, 120 इस तरीके से होता है. दोनों से मेजरमेंट्स सेम आती हैं. इट इज जस्ट दैट कि अगर आप प्रोटेक्टर दोनों सीधा भी पकड़ सकते हैं और उल्टा भी पकड़ सकते हैं तो आप दोनों तरफ से मेजर कर सकते हैं. नाउ हाउ डू वी स्टार्ट मेजरिंग द एंगल? आवर प्रोटेक्टर इज ट्रांसपेरेंट. हमें एक एंगल गिवन है, हम अपने प्रोटेक्टर को उठाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है. इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट पे रखा, इसके सेंटर पॉइंट को, ठीक है. तो हमने सेंटर पॉइंट पे रखा. अब हमारे यहाँ पर सारी मेजरमेंट्स गिवन है. जहां पर भी ये मेजरमेंट आ रही है, सपोज ये आ रहा है हमारा 40 डिग्रीज पे, so the measurement of this angle will be 40 degrees. ठीक है, so this is how you will measure it. So जो points मैंने अभी आपको समझाए हैं वो exactly same यहाँ पर लिखे हुए हैं. जैसे कि you have to place the center of the protractor on the vertex of angle ABC. This is angle ABC. That is B. That is angle, मतलब इस B पे आपको वो सेंटर रखना है. Adjust the protector so that its baseline coincides with BC. ठीक है, तो जो ये बेस लाइन है वो बिल्कुल BC पे coincide, मतलब दिखनी नहीं चाहिए BC, बिल्कुल बेस लाइन उसके ऊपर फिट हो जानी चाहिए. Now C towards 0 degree marking the arm BC points to. ठीक है, यहाँ 0 डिग्री पे आना चाहिए पॉइंट हमारा जो BC है. In our example, BC points to the 0 degree marking on the inner circle. तो यहाँ पर 0 डिग्री पे ये आ गया inner circle पे. Now read the marking of the degree line that coincides with AB. अब ये जो AB है ये कहाँ पर coincide हो रहा है, वो हमारा उतना एंगल है. यहाँ पर वो coincide हो रहा है 60 से 60 डिग्रीज. तो इसीलिए ये वाला जो हमारा एंगल है वो है 60 डिग्रीज. ठीक है, therefore the measure of the angle ABC is equal to 60 degree or angle ABC is equal to 60 degree. Now, for measuring any angle, see towards which 0 degree marking the baseline points to. If the baseline points to 0 degree marking at the right side, read the inner circle. और अगर आपका जो 0 डिग्री है वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो आप आउटर सर्कल को रीड कीजिए. हमें सबसे पहले बेस पॉइंट पे ये देखना है कि हमारा 0 डिग्री किस तरफ आ रहा है. वो आपके प्रोटेक्टर को पकड़ने का तरीका है बेसिकली.
Now, you have to measure the following angles using the protractor. I don't have a protractor over here. You must be having a protractor at your home. Just place the protractor here and measure it. Now, you have to draw a hexagon by taking all sides equal, measure all angles, join the ends and form as much triangles as you can. तो आपको ये सारे angles जो हैं वो measure करने हैं इस hexagon के. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मैंने आपको पहले समझाया था कि एंगल्स के कौन से टाइप होते हैं. सो देयर इज अ स्ट्रेट एंगल, जैसे कि जो दोनों रेज बिल्कुल सीधी हैं, ठीक है. सो वो क्या बना स्ट्रेट एंगल. यहाँ पर जब 6 o'clock हो रहे हैं तो स्ट्रेट एंगल है, और 9:15 पे भी बिल्कुल स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है. नाउ acute angle which is less than 90 degree, which I have explained you earlier also. 0 degree से लेके 90 degree के बीच में जो भी एंगल है वो acute angle है. Basically 1 degree से लेकर 89 degrees तक क्या है हमारा acute angle है. Right angle का क्या मतलब हुआ 90 degrees. So it is also called a 90 degree angle or a right angle. जैसे 3 o'clock पे 9 o'clock पर ये क्या होते हैं 90 degree angles होते हैं. What is an obtuse angle? Obtuse angle हमारा होता है जो कि 90 degree से बड़ा और 180 से छोटा होता है. So 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्रीज तक सारे ही हमारे क्या हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं. आपको सारे ही एंगल्स कहाँ मिल जाएंगे आपके क्लॉक में. सो डिफरेंट जब टाइम होता है तो डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं. जैसे 9-10 पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल हमारा होता है the angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is called the reflex angle. ठीक है. तो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज जब हम घूमते हैं तो ये वाला जो एंगल है हमारा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा. ये वाला तो 90 डिग्री है बट ये वाला रिफ्लेक्स होगा. नाउ व्हाट इज अ कंप्लीट एंगल और 360 डिग्री एंगल. जब हमारा जो दोनों रेज हैं वो कोइंसाइड हो रही है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. तो ये दो रेज हैं दोनों कोइंसाइड हो रही हैं तो दिस इज अ कंप्लीट एंगल. मतलब कि एक रे पूरी घूम के वापस यहाँ आ गई है एंड दिस इज द जॉइनिंग पॉइंट. सो दिस इज आवर कंप्लीट एंगल. एन एंगल दैट एग्जैक्टली मेजर्स 360 डिग्री इज नोन एज अ कंप्लीट एंगल. Here OA coincides with OB और OA dash. So ये कंप्लीट एंगल को हम ऐसे शो करते हैं. Alright. Now you have to identify the angles as acute, obtuse, right and straight and in these following. ये क्या है acute, ये obtuse and then this is a right angle. Right angle, right angle, right angle. Straight angle, straight angle, right angle. है ना. अगर आपको नहीं पता चले तो आप मेजर भी कर सकते हैं. जैसे ये वाला obtuse है, ये वाला straight है, ये वाला acute है और ये वाला right है. Now you have to classify these angles according to the measurement. 90 से कम, 0 से बड़ा acute, 90 से बड़ा 180 से कम obtuse. Acute, 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 right, acute. Obtuse, 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 straight, obtuse. ठीक है. Obtuse, acute, obtuse, acute. Right, acute, acute, obtuse. Now you have to construct the angles using a protractor. हमें बोला गया है supposingly हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है. हम क्या करेंगे स्केल लेंगे और एक पहले रे ड्रॉ कर देंगे. इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे अपना प्रोट्रैक्टर coinciding the base with the ray. अब हमारा 60 डिग्री समवॉट इधर को आएगा. यहां पर हमारा जो जहां पर 60 डिग्री आ रहा है वहां हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया, अपने प्रोटेक्टर को हटाया और स्केल यहां पर प्लेस करके यहां पर स्ट्रेट बिल्कुल रे खींच दी
और जो हमारा ये वाला एंगल है वो हमारा आया 60 डिग्रीज. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द एंगल एंड नेम इट. एंड हाउ विल यू राइट इट? एंगल AOB is equals to 60 degrees. Simple. So you have to construct an angle ABC 75 degrees. अब देखिए, पहले हमने BC एक रे बनाई, देन प्रोटेक्टर के सेंटर को इस BC के ऊपर रखा, और जहां पर भी 75 डिग्रीज आ रहा है, मतलब 70 और 80 का मिड पॉइंट, वहां पर हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, अपने प्रोटेक्टर को हटाया और इस B से इस पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी. सो ये हमारा क्या बना? 75 डिग्रीज का एंगल. We will name it as 75 degrees. Angle ABC is equal to 75 degrees. All right. So these are the all the steps which are just being written. What I have explained you verbally. Now you have to do this exercise 9.5. You have to use the protector to draw these angles. तो बिल्कुल सेम यही वाले steps को follow करके आप इन angles को draw करेंगे. जैसे कि जो 135 डिग्री है, जब आप इसका बेस लाइन BC ड्रॉ करेंगे या BC ड्रॉ करेंगे बेसिकली, तो 135 डिग्री समवॉट यहां पर आएगा. ठीक है, इसको A मार्क कर देंगे. Now draw a ray BC on your notebook and construct the angle of 140 degree on it. तो आप ड्रॉ कर देंगे प्रोटेक्टर यूज करके. Now these are some of the practical based questions on this exercise on this chapter of geometry which you have just learned. तो प्रोटेक्टर का यूजेज आपने अभी सीखा है. सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन सीइंग कि अपने एनवायरनमेंट में देखिए आपके पास स्ट्रॉ होगी, स्ट्रॉ को यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं. एंड हैव फन विद द चैप्टर. ऑल्सो डू दीज फन बेस्ड क्वेश्चंस with your classmates and be well versed with the chapter of geometry. So keep learning, keep shining. Bye bye.